all. Good evening to everyone. I, Neha Jasuja, welcome you all on behalf of whole team of Legalify India to our interactive session with Ma'am Shaheen. Before we begin with the interactive session, I would like to introduce Legalify India. Legalify India is an organization that has been started with its cardinal motive to help law students and the public ranging from diverse backgrounds to enhance their legal knowledge and help them to know their rights and duties so that they can make a decisive viewpoint towards society and the governing law. Our mission is to enrich our audience with the sublime knowledge and updates, thus making them aware and acquainted with the capricious and ever-shifting society. We further aim to provide the students and scholars a symbiotic podium over which they can showcase their talent and competence. We will act as a bridge between you and the audience by publishing your thoughts through articles, blogs, and research papers. Now, I would like to introduce our Shaheen ma'am. Ma'am Shaheen Sayad, a very renowned and ardent social activist. She is human rights activist based in Kuwait. She remarkably puts her valuable efforts to help isolated Indians facing any sort of abuse in abroad. Talking about her due phenomenal contribution to the society, she helps Indians stranded in Middle Eastern countries and in countries like Malaysia and Singapore. In January 2018, she helped around 1,800 unpaid Indian workers stuck in Kuwait. For instance, a company called Kharafi International had not paid the salary of these Indians for several months. Sorry. When V.K. Singh, Minister of State for External Affairs and Overseas Indian Affairs, visited these workers in Kuwait, they all held placards saying ma'am was the only person who helped them, showing courtesy and their heartfelt gratitude towards ma'am. She's splendidly helping around 150 Indian workers in Saudi presently. Adding cap to her father, she is also an animal lover and she also works spectacularly for ensuring justice to all. Lastly, her ideology is to give beneficent efforts back to the society, and it is essential to follow these duties being a proud citizen of India. Hats off to your sumptuous contribution to make the world a better place to live in, ma'am. Now, ma'am, would you like to give some introductory remarks? Ma'am, you are muted. Please unmute yourself. Thank you, Neha. Yes, ma'am. So, yeah, can you repeat? Yeah, ma'am. I was just asking, like, we would like to hear some introductory remarks from you. Already you have said so much about me. You have left nothing. You have nothing for me now. Okay, ma'am. So, yeah, we will move forward then. Yeah, तो मैम आपकी क्या इंस्पायरिंग जर्नी रही है आज तक? जैसा कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप में क्या मोटिवेशन, आपको कहाँ से वो मोटिवेशन मिला कि आप एक्टिविस्ट बने और सबकी हेल्प करें? See, first of all, कुछ भी जो आप करते हो वो आपके घर से ही शुरू होता है. So my mom, okay, she was a social worker. एंड मैंने उनको देखा है वो किस तरह से सोसाइटी के लिए काम करते थे. मीन्स रात को 2 बजे भी हमारा डोर है जो वो नॉक होता था. एनी काइंड ऑफ केसेस शी यूज्ड टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प. तो वो एक पहले से ही घर में देखा हुआ था हम लोगों ने. एंड आफ्टर मैरिज व्हेन आई शिफ्टेड टू कुवैत, सो कुवैत जब मैं शिफ्ट हुई थी इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 22-23 इयर्स अगो आई शिफ्टेड टू कुवैत. तो जिस तरीके से आज ये सोशल मीडिया वगैरह है इतना कुछ नहीं था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ हेल्पिंग हैंड दोज डेज. इट इज़ वेरी इजी नाउ. तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि आई वाज इन द सुपरमार्केट और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने एक लेडी को देखा, इंडियन लेडी को, एक कोई थी फैमिली के साथ. मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा. ऐसा था कि हम 2 इंडियंस थे और मुझे उससे बात करनी थी, पर क्योंकि जैसे स्पॉन्सर्स हैं उनको बात करने नहीं देते किसी से भी, स्पेशली इंडियंस हो तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको पूछूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो. तो वो मेरे से उसकी बातचीत नहीं हुई. इत्तेफाक से सेकेंड टाइम भी ऐसा हुआ कि मैंने उसी लेडी को देखा. आई जस्ट वेंट टू वॉशरूम और वो लेडी मुझे वहाँ मिली. तो उसने सारा सिचुएशन बताया कि दे आर नॉट गिविंग मी प्रॉपर फूड और मुझे घर जाना है, मैंने रिक्वेस्ट किया है. तो
मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, और ऑलरेडी उसके मेरे ख्याल से 2 इयर्स खत्म हो गए थे। मतलब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स बोलते हैं जिनको, जैसे हाउस मेड, हाउस ड्राइवर, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स के बाद में अगर वो वर्कर्स चाहते हैं तो रिन्यू करवाते हैं स्पॉन्सर को बोल के अपना वीजा, या तो फिर उनको बैक होम भेजना ही होता है, वो घर उनको जाना ही है। तो उसने मुझे बताया 2 इयर्स खत्म हो गए, अब मुझे ये फैमिली घर नहीं भेज रही है। तो सबसे जो बड़ा इशू हम लोग इस जब हम हेल्प करते हैं तो फेस करते हैं पासपोर्ट, क्योंकि अरब देशों में पासपोर्ट स्पॉन्सर्स रख लेते हैं, कंपनी रख लेती है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही चैलेंज था, और उस टाइम पे ये मोबाइल फोन वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे कि मैं उससे कुछ कांटेक्ट कर सकूं। एनी हाउ जिस तरीके से फिर मैंने उसको गाइड किया, और फिर मैंने उसको बताया कि मैं ये टाइमिंग पे मोस्टली आती हूँ या ये दिन आती हूँ सुपरमार्केट में, यू कैन मीट मी। और उसको फिर मैंने टैक्सी वाले से फॉलो अप करवा के उसको इंडियन एम्बेसी भेजा, वहां से वो आउट पास पे इंडिया आई। आउट पास इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, इट इज वन टाइम यूज्ड, जैसे कि पासपोर्ट की जगह पे ये आउट पास बना देती है इंडियन एम्बेसी, एंड विद दैट शी कैन मूव। अगर उसके ऊपर कोई केस नहीं है, अगर कोई उसके ऊपर अब्सकॉन्डिंग केस डाल देते हैं तो शी विल बी गेटिंग डिपोर्टेड, शी और ही, हूएवर इट इज। तो इस तरीके से वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि वहां जाके उसने मुझे, मेरे पास लैंडलाइन हुआ करती थी, इसके फैमिली ने मुझे कॉल करके थैंक यू बोला। मैंने बोला व्हाई नॉट, सिटिंग एट होम और वेस्टिंग योर टाइम, इट्स बेटर यू utilize that time in helping somebody else. So that how it began, and slowly slowly करके ये start हो गया मेरा जो काम है। तो it started, it was the first case, I will never forget कि जो मैंने, मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब it was very difficult। अब तो बहुत इजी हो गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक है, गूगल है, सोशल मीडिया का मीन्स हम ये सही यूटिलाइज करते हैं। जो ये वर्कर्स वगैरह फंसते हैं, इनको नंबर मिल जाते हैं या तो ये मैसेज करते हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ इस फील्ड में, मेरे तरह से और भी लोग होंगे, पर वो इतने खुले होके प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, उनको डर होता है, पर मुझे नहीं लगता है डर। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। और मैम आपने जैसा बोला कि पहले मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पर आज की डेट में मीडिया बहुत एक्टिव है। हाँ, हम सोशल मीडिया देख लें, भले वो ट्विटर हो या या लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, पर वही मीडिया आज कुछ लोगों को बहुत भ्रम में भी रखता है। तो आप हाँ, बोलो बोलो मैम, बोलो। बस मैं यही बोल रही थी, सोशल मीडिया जो है आजकल लोगों को मैनिपुलेट भी करता है कि आपके राइट्स अगर ये हैं तो ये नहीं। ये कई बार रिलीजन वाली बात भी आ जाती है कि आप इस रिलीजन में, तो लोगों को रिलीजन के नाम पे भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी नेहा हियर। द थिंग इज कि डिपेंड होता है आपके ऊपर। हम लोग भी यूटिलाइज करते हैं, मैं भी हमेशा 24/7 ऐसा होता है कि मोबाइल मुझे पास लेके सोना होता है, कि कोई भी मुझे कभी भी कॉल करता है, इट्स लाइक 2 o'clock इन द नाइट ऑल्सो। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या फॉरवर्ड करते हैं। पहले तो आपको जस्टिफिकेशन करना होगा, जो मैसेज आपके पास आया है या मीडिया पे आप देख रहे हो, आप उसको 2-3 तरीके से चेक कर सकते हो, गूगल पे, ट्विटर पे, कि ये फेक है कि ये मीन्स रियल है। इस तरीके से अगर आप उसको चेक कर लो और फिर फॉरवर्ड करो तो अच्छी बात है। सेकेंडली, जैसे आपके ऊपर है कि आप इस मीडिया को अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हो और बुरी तरीके से भी यूज करते हो। दोनों तरफ से मीडिया, दो तरीके के यूजर्स हैं, और एक है इन बिटवीन जो इसके ऊपर बिल्कुल कैरी नहीं करते। कितने मेरी फ्रेंड्स हैं जो नहीं है फेसबुक पे, कितने आपके भी घर वाले होंगे जो फेसबुक पे नहीं है, जो जो आजकल के न्यूज को देखना अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वो किस तरीके से ले। और जो ये तरह जो फेक न्यूज है, ज्यादा करके ये इफेक्ट करती है हमारे सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि 24/7 जैसे बच्चा घर में छोटा होता है, आज का टाइम बता रही हूँ मैं, तो माँ क्या करती है, मोबाइल फोन दे देती है कि बेटा तुम गेम खेल लो या तुम टॉम एंड जेरी देख लो। तो ये टॉम एंड जेरी वाला शो हम लोग हमारे सीनियर्स को दे देते हैं कि वो घर में अगर मदर इन लॉ है या मदर फादर है तो 24/2 कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, चलो इनको टॉम एंड जेरी वाला न्यूज दिखा देते हैं। वो न्यूज जो उनके सामने चलता होता है वो उस तरीके का वो सुनते हैं, और फिर वो अपने से मीन्स हमको नहीं, जैसे अपने पोता पोती, नवासा नवासी, जैसे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस या उनकी एज वालों में ये फैलाते हैं। और उसी तरीके से जो घर में लेडीज हैं,
जो जॉब पे नहीं जाती हैं उनके पास में भी यही एक एंटरटेनमेंट है, और दूसरा उनका मोबाइल। तो जो देखते हैं फॉरवर्ड करते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता है। ये चीज हम भी घर में फेस करते हैं। तो हम लोग, हमारे घर में हम लोगों ने जो डिश टीवी है वो रखा ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम देखते ही नहीं है, क्योंकि वो देखना मीन्स, इससे बेटर है कि आप टॉम एंड जेरी देख लो, यू विल एटलीस्ट डेफिनेटली एंजॉय। मैम, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली मिसलीड करेगा, ऐसे थॉट्स मिसलीड होंगे, करता है। बिकॉज क्योंकि elderly people are not so aware about the latest technology, they don't use phones, use नहीं करते हैं। यू कैन प्ले अ स्मॉल गेम। आप लोग 5 लोग बैठो और विस्पर करो, ओके। जो फिफ्थ वाले के पास जो वो टॉपिक होगा वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या डेफिनेटली। तो अपनी अपनी एक एड ऑन करके उसको इस तरीके से बना देते हैं। और एज यू नो आवर करंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो we can't blame anybody, and same time we have to blame each and everybody. Depend upon person to person again. Yes ma'am. ओके, तो मैम आपने बताया कि जैसे बहुत साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, बहुत आपने हेल्प की है लोगों की, तो आपकी क्या बेसिकली जिम्मेदारियां रहती है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको घर पहुंचाना किसी भी तरीके से। वो लोग, यू विल नॉट बिलीव कि जब वो यहाँ फंसे हुए होते हैं तो वो 24/7 फोन पे ही बैठे होते हैं कि मैम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो मैसेज छोड़ो या तो कॉल करो, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। ठीक है, मैं ये डोमेस्टिक, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर तीनों की बात कर रही हूँ। तो बस इनको घर पहुंचना होता है। ये घर एक बार पहुंच गए, उसके 2-4 महीने के बाद मुझे कॉल आता है। एक तो वो कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिम्मेदारी से मुझे फोन करते हैं कि मैम हम लोग पहुंच गए। कोई बहुत अच्छे होते हैं तो फैमिली से भी बात करवा देते हैं, फिर उसके बाद से ये लोग मुझसे कनेक्टेड रहते ही नहीं है। फिर 3 महीने 6 महीने के बाद एक कॉल आता है, मैम कहीं जॉब पे लगा दीजिए। तो फिर मैं इनको डांटती हूँ कि मैं एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको जॉब पे लगाऊं। इतनी मुश्किल से तो आपको इस कंट्री से इंडिया भेजा गया है, तो अब मैं आपको वापस बिल्कुल इस चीज में हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं फंसे वो को निकालती हूँ, लाके लोगों को फंसाती नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो सबसे बड़ा इशू है नेहा यहाँ पे, कि हम लोग जब ये पहुंचते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली मैं, मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं उनको बोलती हूँ एक वीडियो दे दीजिए आप, कि जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया है गल्फ में, या आपने मिडिल ईस्ट में, या मलेशिया में, या ईरान में, क्योंकि बेसिकली आई एम हेल्पिंग सम सी फेरर्स इन ईरान आल्सो नाउडेज। Yes, लास्ट टाइम 1000 फिशरमैन थे वहाँ पे, तो उनको भी मैंने, मतलब उनकी, आई वाज द वॉइस रेजर फॉर देम एंड ऑल ऑफ देम रिच बैक होम नाउ, ओके। yes तो ma'am. जब व्हेन यू आस्क देम दिस, डू दिस फेवर कि हमको एक वीडियो दे दो बस, तो ये लोग हम लोगों को मुझे ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनको नहीं बताना है जमाने को कि हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो दैट इज वेरी मीन ऑफ देम। अगर ये Yes, आए ma'am. और अगर ये ऐसी वीडियो दें तो दूसरे जो आने वाले हैं उनको एक मैसेज मिलता है कि ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि ये लोग या तो ना आए, या तो आए तो वो प्रिकॉशन ले सारी चीजों का। These are the two, this things what we face, what Okay I ma'am. face, you can say. यस मैम। मैम आपने अभी जैसा बोला कि आपके फील्ड में कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, बट डू यू हैव योर एनी ऑफ द हेल्पिंग हैंड कि आपको ही पर्टिकुलरली कोई हेल्प करता है जो इनको पासपोर्ट्स, जैसा आपने बोला कि पासपोर्ट्स देने में बहुत मुश्किल होती है? तो देखो, व्हाट हैपेंस यू नो, जहाँ तक एम्बेसीज वगैरह होती है, हमारा जो हाथ दब जाता है वो दबता है इनके पासपोर्ट के लिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। ये 2019 का, 2000 20 का ही है, जैन की बात है ये। एंड राइट नाउ आई एम इन दुबई, आई वाज इन कोविड दैट टाइम। तो मुझे रात को 2 बजे एक कॉल आता है, और कॉल आने के बाद मुझे पिक्चर्स आती है। पिक्चर एक लड़की की होती है और उसको अब्यूज किया हुआ है, मतलब उसको सारे उसके बदन पे मार्क्स वगैरह हैं। एंड देन शी, एक वीडियो में एक ऑडियो मैसेज आई मुझे, एंड शी टोल्ड मी कि मुझे आप बचा लो। एंड उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब रात के 2 बजे अगर इस तरीके का किसी को फोन आए, वो बंदा क्या करेगा? तो फिर मैं रात भर सोई नहीं। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मुझे वो लड़की ऑनलाइन दिखी। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे कॉल किया। कॉल करने पे मुझे पता चला कि शी वॉज फ्रॉम पंजाब, ओके। एंड उसको बोला गया था कि वो, उसको अमेरिका भेजा जा रहा है टू वर्क इन ए सलून, ओके। बट उसको कुवैत में ही उतार लिया गया।
एंड शी केम ऑन डोमेस्टिक वीजा. सलून का वीजा होता है वो शोन होता है, शोन इज 18 नंबर वीजा, और जो डोमेस्टिक है वो 20 नंबर वीजा है. कोविड की बात बता रही हूँ मैं आपको. तो उसको 20 नंबर वीजे पे लाया गया था. इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि ये लोगों को बस वीजा, पासपोर्ट मिल गया तो दैट मीन्स दे आर रेडी टू फ्लाई, इट्स वीजा, ओह खत्म. फिर उनको कुछ पता ही नहीं करना है कि वो कौन सा वीजा है, आगे क्या होने, वी आर रेडी टू फ्लाई. प्लेन में बैठने का एक्साइटमेंट है कि दूसरी कंट्री में जाने का. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. ये यहाँ पहुंची और इसको फिर जैसे कि यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, यू कैन कॉल देम मॉडर्न स्लेवरी आप बोल सकते हो, वहां पे इनको बेचा जाता है. जो हाउसमेट्स आती हैं, हाउसमेट्स वीजा बेचना इन सेंस खड़े होके बोली नहीं लगती है. स्पॉन्सर्स आते हैं और वो देखते हैं और फिर इनकी एक रकम होती है. दैट मीन्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली कोई के हिसाब से 1000 दिरहम टू 1200, दैट इज 2 लाख से ऊपर स्पॉन्सर पे करता है एजेंट को, फिर इनको लेके जाता है. ठीक है. विक्टिम एम्प्लॉय और स्पॉन्सर दोनों होते हैं. यहाँ पे जो मेन गेम होता है वो एजेंट का होता है, चाहे वो इंडिया में बैठा हो चाहे वो प्रदेश में बैठा हो. तो एक बार इसको ले जाता है, फिर उसके बाद वो स्पॉन्सर की जिम्मेदारी हो जाती है. तो इसी तरीके से इस लड़की को भी स्पॉन्सर ले गया था. और बेसिकली क्या हुआ था कि एक बांग्लादेशी फैमिली ने उसको परचेज किया था स्पॉन्सर से, और वो उसको अपने सलून में काम करवा रहे थे. सलून में काम करने के बाद में उस फैमिली को ऐसा लगा, जो भी वो लेडी और उसके हस्बैंड को, कि अब सलून नहीं चल रहा है तो हम कुछ जेंट्स को भी यहाँ पे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ सलून नाउ डेज इट इज वर्किंग, कि जेंट्स और लेडीज दोनों भी सर्विस ले सकते हैं. कोविड में ऐसा होता नहीं है, पर इलीगली ये लोग इसको चलाना चाह रहे थे. तो ये लड़की ने मना कर दिया. शी सेड नो, मैं जेंट्स को सर्विस नहीं दूंगी. तो इसको मारा तोड़ा गया. उसके हस्बैंड ने, मतलब इसको, उसकी वाइफ खड़ी थी और सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की. उसने अपने आप को मुझे मैसेज देने के बाद वॉशरूम में बंद रखा था. ये सलून में ही रही उस रात. एंड ऑल द स्टोरी आई केम टू नो. बेसिकली फिर मैंने उसके वो जो उसकी मैम थी सलून वाली बांग्लादेशी, मैंने उससे नंबर लिया उसका, एंड देन आई कॉल्ड हर डायरेक्टली. आई सेड दिस इज द इशू, तो आई नीड दिस गर्ल बैक. तो वो बहुत बदतमीजी से पेश आई. देन आई गॉट द स्पॉन्सर्स नंबर. स्पॉन्सर एग्री हुआ. उसने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली ही सेड दैट. बट वंस ये लोगों ने अंदर से, बिकॉज इन लोगों का आपस में सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग था, स्पॉन्सर का और जो इसकी मैडम थी, क्योंकि वो मैडम ने स्पॉन्सर को पैसे देके खरीदाया था उसको. हम लोग नहीं डोमेस्टिक वर्कर हायर कर सकते, मतलब स्पॉन्सर अरबी होता है. तो इस लेडी को ये लोगों ने क्या किया कि बिफोर द स्पॉन्सर कुड रीच द सलून, उसमें पूरा ये लोगों ने सामान तोड़फोड़, डैमेज कर दिया. सलून को डैमेज किया और पुलिस को बुला लिया कि ये लेडी ने यहाँ पे सारा तोड़फोड़ मचाया है एंड ये हमारे से बहुत बदतमीजी कर रही है. तो पुलिस की गाड़ी में बिठा के इसको लेके जा रहे थे. बट आई वॉज ऑन द व्हाट्सएप. उसका मैंने व्हाट्सएप ऑन करवाया था, लोकेशन मैं उसका ट्रैक कर रही थी, लाइव लोकेशन. और स्पॉन्सर भी पहुंचता है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में. तो स्पॉन्सर ने मुझे बोला पर्सनली कि यू ब्रिंग 1000 दिरहम, दिनार 1000, दैट इज 2 lakhs, एंड मैं ये लड़की को छोड़ देता हूँ विद पासपोर्ट. सो आई टोल्ड हिम, एक तो लड़की को सेक्सुअली अब्यूज किया गया, अटेम्प्ट टू रेप केस है, उस पे से तुम लोगों ने ही तोड़ा सलून, and you want me to pay 1000? Why should I pay 1000 to you when I can pay to the lawyer? मैं लॉयर लाती हूँ, लड़की को निकालूंगी, तुम पे सब पे केस करूंगी. तो थोड़ा सा डर गया स्पॉन्सर. उसने मुझे बोला ओके कैन यू गिव टिकट. आई सेड यस आई कैन पे फॉर द टिकट. हम लोगों ने टिकट इशू करवाई और उसका रात का 2 बजे का फ्लाइट था. 11 बजे स्पॉन्सर लेके आया उसको. वो जो उसकी बांग्लादेशी मैडम थी, उसने उसके बैगेज, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं दिए. सो दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. इम्पॉर्टेंट था कि उसको सेफली घर पहुंचाएं. 11:30 बजे हम लोग आए कोएट एयरपोर्ट पे. और क्योंकि 2 बजे की 4 o'clock की फ्लाइट थी उस दिन अर्ली मॉर्निंग, और जो काउंटर था वो 1 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच खुलने वाला था. तो इस लड़की को ये लोग अंदर नहीं ले रहे थे. देन आई स्पोक टू द एयरपोर्ट मैनेजर, उनको सारा किस्सा बताया, लड़की को अंदर भेजा विद द पासपोर्ट एंड वेरी safely she reached. She was in touch with me till the time she reached Delhi. ठीक है. दिल्ली से जब अपने घर पे पहुंची तो 2 दिन तक उसने फोन नहीं किया.
And believe me, that was the scariest night for me, those 2 nights and day, क्योंकि I was not knowing where is the girl, where she landed. दिल्ली से तो किसी ने गायब नहीं कर लिया उसको दिल्ली एयरपोर्ट से. एंड देन आफ्टर 2 days फाइनली वो ब्लू टिक आता है मेरे मैसेज पे. एंड देन आई कॉल्ड हर. आई सेड यू रिच एंड यू डिडंट कॉल मी. सो शी सेड नहीं, मैं बहुत परेशान थी, मैं डर गई थी, ये था वो था. देन आई आस्क्ड हर, एक वीडियो दे दो जो तुम्हारे साथ हुआ है, बहुत सी लड़कियों की जान बच सकती है, से एक वीडियो बना के दे दो. शी ब्लॉक्ड मी. सो दिस इज व्हाट द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि आप जिस तरीके से हेल्प लेते हो, आप अपना फेस कवर करके या किसी तरीके से एक ऑडियो का भी अगर आप हमको सपोर्ट करते हो, तो वी कैन सेव मैनी ऑफ देम. और ऐसा नहीं है कि सारे स्पॉन्सर खराब हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे से देखते हैं हाउसमेट्स को अपनी एज अ फैमिली. 20-20 साल से एक ही घर में हाउसमेट्स और ड्राइवर काम कर रहे हैं. तो 5 fingers आर नॉट सेम. इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इटसेल्फ, इट कैन हैपन इन इंडिया. So this is what is one of the story. It was really great to hear this story. आपने जैसा बोला लोग वीडियो नहीं देते हैं, इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है लोगों को कि हाँ हम दूसरों को अवेयर कर सकते हैं. समाज में अपनी समाज कौन है इनके लिए? इनकी फैमिली और इनके रिश्तेदार. तो ये अपने रिश्तेदारों में अपनी नाक नहीं कटना देना चाहते हैं, कि मतलब हम हमारे रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहते हैं कि हम इतने प्रॉब्लम में थे, हम इतने मतलब इतना डिफिकल्टी से आए, हमने किसी की मदद ली. तो ये नहीं दिखाना चाहते. इट इज विद ऑल ऑफ देम, चाहे वो सी फेरर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो ब्लू कॉलर हो, चाहे वो हाउस मेड हो. एक बार काम निकल गया तो ये बेशक मन में हमको थैंक्स करते होंगे, पर कभी ये लोग नहीं चाहते कि ये हाईलाइट हो. सेम केस मेरे साथ में सऊदीया का हुआ था एक्चुअली. ट्विटर से मेरे पास ये केस आया था, और उसकी वाइफ पुलिस कस्टडी में थी एक्चुअली, और सुनवाई नहीं हो रही थी. तो एनी हाउ जिस तरह से लिंक्ड अप हुआ, स्पॉन्सर से मेरी बात हुई, सारा कुछ हुआ. फाइनली द लेडी वाज फ्रॉम बॉम्बे एंड शी रिच ऑल द वे फ्रॉम कुवैत. आई वेंट टू बॉम्बे टू मीट दिस वुमन. मैंने क्योंकि उससे फोन पे बात की थी, व्हाट्सएप से ही बात की थी मैंने उससे. तो उसके हस्बैंड ने बोला था शी लैंडेड हियर सेफली, थैंक्स टू हिम. उसने मुझे मैसेज दिया. तो आई सेड आई वुड लव टू स्पीक टू दिस लेडी. तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि बीइंग इन सऊदीया, आपका जब वहाँ पे आपको किसने मीन्स अरेस्ट किया था, लेडी पुलिस थी या नहीं थी? तो शी सेड नो मैम. जो चेकअप लोगों ने मुझे चेक किया था मैनुअली, वो जेंट्स ने किया था. आई फॉरगॉट दैट वर्ड एक्चुअली, कि जब आप अरेस्ट होते हो तो आपका पूरा चेक किया है. अंडरस्टूड? तो कि आपके पास कोई ऐसा कोई पॉइंटेड सामान तो नहीं है. तो बेसिकली वो एक लेडी कांस्टेबल होना जरूरी है. बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, लेडी कांस्टेबल होना चाहिए. तो मैंने बोला मुझे ये वीडियो दे दो, तो हम लोग यूएनएच तक आवाज उठाएंगे या इसको मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाएंगे कि आपकी तरफ बहुत सी लेडी होगी जो ये फेस करती हैं. उसके हस्बैंड ने फौरन फोन लिया और मुझे बोला, देखो मैम, आपने मेरी वाइफ को हेल्प किया, थैंक्स लॉट, पर अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज ओपन हो. और जिस तरीके से ऊपर वाले ने आपको भेज दिया बचाने के लिए, वैसे दूसरे लोगों को भी कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा. तो आई एम सॉरी, हम वीडियो नहीं दे सकते. So this is what we face. और कभी ऐसा लगता भी है कि बस enough, we should not help this mean people. पर फिर because मेरा काम मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, तो again it is continue, चलता रहता है. वो चल ही रहा है अभी तक. यस मैम, एक होता है कि हम भी कुछ हमने हेल्प किया है तो वी शुड हैव अ एक्सपेक्टेशन कि हाँ वो हमको एक वीडियो देंगे तो अवेयरनेस फैलेगी उस चीज से. दैट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने एक आर्टिकल मेरे बारे में आया था द मीटर्स में, पता नहीं, तो उसमें भी मैंने इंटरव्यू में यही बोला था. मैंने जब इंटरव्यू दिया था कि जैसे बताते हैं पिक्चर वगैरह में एनआरआईज की लाइफ लग्जरियस, तो क्यों कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इस लाइफ पे नहीं पिक्चर बनाता? बनाना चाहिए. एक अवेयरनेस मैसेज होगी कि यहाँ पे लोग जो स्पेशली जो ब्लू कॉलर्स आते हैं या बैचलर्स होते हैं, जो व्हाइट कॉलर्स एज अ बैचलर्स रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसे आपको मीडिया में दिखाई जा रही है. अगेन मीडिया आता है, इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. एक रूम में कभी कभी
8 से 12 लोग रहते हैं। 2 बेडरूम फ्लैट होता है, उसमें ऐसा भी होता है कि 20 लोग होते हैं, 1 वॉशरूम होता है। हाइजीन के नाम पे 0, बिकॉज इतने सारे लोग वॉशरूम यूज करते हैं एंड दे डोंट प्रॉपरली क्लीन इट। इनका खाना वगैरह जो होता है ये मैस में होता है, क्योंकि सिर्फ इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, खाना इनको खाना होता है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना भी नहीं खाते ये लोग। तो ये सारी चीज़ें अगर मीडिया में इसको हाईलाइट किया जाए तो हो सकता है हमारी सरकार ये सरकारों से बात करके कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाएगी, बट नोबडी इज बॉदर, नोबडी इज बॉदर। हमारे लिए कोई नहीं सोचता। अगर किसी को अगर हमको हेल्प भी दिलवाना होता है, वी कीप ऑन ट्वीटिंग, जैसे कि कराफी केस में हुआ था। माय फादर वाज इन बॉम्बे हॉस्पिटल, ओके, वेंटिलेटर पे थे मेरे डैड, ठीक है, एंड दैट टाइम आई वाज फाइटिंग फॉर दिस कराफी वर्कर्स एंड आई लैंडेड इन बॉम्बे। डैडी वाज ऑन वेंटिलेटर और बॉम्बे हॉस्पिटल के नीचे आई वाज हैविंग मीटिंग विद ऑल दिस न्यूज चैनल्स, वीडियोस भी ली गई, सारा मटेरियल भी दिया। एंड ऑफ द डे वो लोगों ने बोला सॉरी मैम, आपकी स्टोरी में दम नहीं है। और 1900 नहीं 7000 वर्कर्स थे वहां पे, और वो फाइट ऐसी थी कि मैंने चैलेंज किया था कि आई विल बी हेल्पिंग देम। मैं ये कंप्लेंट लेके इंडियन एम्बेसी भी गई थी, इंडियन एम्बेसी ऑफ कुवैत, मैं ऑफिसर का नाम नहीं लूंगी। उनसे मेरी बातचीत हुई थी एंड आई सेड सी कि इतने सारे ये वर्कर्स हैं और इनको कुछ पिछले 1 साल से हेल्प नहीं मिल रही, ये केस मेरे पास आया है। तो जो भी वो XYZ ऑफिसर था उसने वो मुझ पे हंसा और मुझे बोलने लगा आई विल पिटी ऑन यू, क्योंकि ऑलवेज यू टेक सच काइंड ऑफ केसेस। एंड उस टाइम पे ऐसा हुआ कि सही में बोलते हैं ऊपर वाला है, तो वो उसका वो मेरी प्रेयर्स सुनने का टाइम था। मैंने वो चैलेंज लिया, आई केम आउट एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट विद माय हस्बैंड टू द कैंप। वो कैंप में कभी कोई लेडी नहीं गई है एंड देयर वर 7000 वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज। देयर वर इजिप्शियंस, देयर वर इवन पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी एंड नेपाली एंड फ्यू फिलिपीनीज ऑल्सो। और किसी के पास वीजे नहीं थे और मेडिकल सपोर्ट नहीं था उनको, क्योंकि वीजे एक्सपायर हो गए थे, तो वो जाके हॉस्पिटल से दवाई नहीं ले सकते थे। तो हमने कैंप भी लगवाया था वहाँ पे, मेडिकल कैंप। जो इंडियन डॉक्टर्स फॉर्मा है कोविड में, उनकी हेल्प से और इंडियन एम्बेसी की हेल्प से कैंप लगवाया था वहाँ पे। लेबर कोर्ट में जाके